Good morning, students. How are you? My name is Gyanshu, and I am your science faculty. And welcome to the online classes provided by the IIT's Public School. So today's topic is reflection of light. So what is reflection of light, and what are the types of reflection? What are reflected rays? What are incident rays? And we are going to understand in today's class, that is what is rectilinear propagation of light. So without any delay, let's get started. The first point is reflection of light. So now we are going to understand that what is reflection. What is reflection? The first point, you should know that it is a natural phenomenon. It is a natural phenomenon. ये एक नेचुरल फिनोमेना है. एंड द सेकंड पॉइंट कम्स टू इट्स डेफिनेशन. That it is bouncing back of light after striking the surface into the same medium. Means what? कि when light falls on an object and it bounces back into the same medium after striking the surface, this whole phenomena is called reflection of light. Clear? So we need to know some terms related to reflection of light. So the light, this is source of light. Let me change the color. This is the source of light from where the light is coming, and this is striking on this point, that is on the mirror, and it is again bouncing back into the same medium. That is, the medium here is the air. Okay, clear? This is called reflection of light. Means कि जब भी reflection of light होगा, एक light ray source of light से नीचे आएगा, गिरेगा, किसी surface पे fall करेगा, और फिर टकराने के बाद फिर से वह same medium में जाकर bounce back करेगा. इस पूरे whole phenomenon को हम लोग बोलते हैं reflection of light. So now we have to know that what are the types of reflection. There are two types of reflection. The first one is regular reflection. And the second one is diffused reflection, or we can say it that it is irregular reflection. It is also known as irregular reflection. What is regular reflection? Let us understand. When light rays falls on a smooth surface, ये surface कैसा होना चाहिए? Smooth surface होना चाहिए. When light rays falls on a smooth surface and it strikes on the surface and then bounce back parallelly after the striking, or we can say after the reflection, this whole reflection will be called as a specular reflection or regular reflection. Clear? Means to say कि जब light rays किसी smooth surface पे गिरता है, parallelly fall करने के बाद bounce back भी parallelly हुआ, तो ये ऐसा reflection क्या कहलाता है? Regular reflection कहलाता है. The second one is diffused reflection or irregular reflection. That means what? कि जब बीम ऑफ लाइट क्या होगा? सरफेस पे फॉल करेगा और पैरेलली फॉल करेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा, सभी लाइट रेज के जो डायरेक्शन होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में. दैट मींस वी कैन से दैट कि जब रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज है वो स्कैटर कर जाए, इधर उधर स्कैटर हो जाए, ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं.
आपको मेरे ख्याल से यहाँ दो क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि सर ये इंसिडेंट रे किसको कहते हैं और रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। जब भी कोई लाइट किसी भी सरफेस पे, ये सरफेस मान लेते हैं, ये कोई प्लेन मिरर है, जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल करता है, जो लाइट रे किसी सरफेस पे गिरता है, उस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे या इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट रे बाउंस बैक होता है, जो लाइट रे क्या होता है, बाउंस बैक होता है, उस लाइट रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्लियर। और जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे फॉल करता है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बाबू? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में इंसिडेंट रे को अगर आप जानना चाहें तो आपतित किरण कहते हैं और रिफ्लेक्टेड रे को परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपको इस पॉइंट में रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे आप किसे कहते हैं और रिफ्लेक्टेड लाइट रे किसे कहते हैं, अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो ये एक लाइट का प्रॉपर्टी है। लाइट का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ये क्या है? लाइट का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण लाइट क्या होता है, ऑलवेज ट्रेवल्स, लाइट always travels in a straight path. Light always travels along a straight path. It is a property of light by which light always travels in a straight line. For example, we can say here the candle is source of light. जो candle है ये source of light है, मतलब कि यहाँ से लाइट निकल रहा है। और ये जो आपको यहाँ पे ह्यूमन दिख रहा होगा, ये जो है ऑब्जर्वर है। ये क्या है? ऑब्जर्वर है। मीन्स क्या कि जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगा तो ये ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। कोई जरूरी नहीं कि इधर ही जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोई भी हो, उधर जो लाइट का ट्रैवल होगा, लाइट जो प्रोपेगेट करेगा, प्रोपेगेट का मतलब होता है ट्रैवल करना। प्रोपेगेट मीन्स होता है ट्रैवल, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। लाइट जो यहाँ से ट्रैवल करेगा वो ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगा। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए ये ऑब्जर्वर क्या है, 2-3 कार्डबोर्ड्स लगाते हैं, जिसमें क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स पे उनमें होल किया जाता है, मतलब एक ही पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे होल किया जाता है, तो कैंडल उसको विजिबल होता है। अगर ये होल मान लेते हैं पॉइंट ए यहाँ पे होता है, मान लेते हैं यहाँ पे होता है, और मान लेते हैं फिर सी यहाँ पे होता है, तो लाइट कभी भी इस तरह से ट्रैवल करेगा ही नहीं। तो इस पाथ पे अगर होल रहता तो ऑब्जर्वर कभी भी कैंडल को देख नहीं पाता। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड कि सर लाइट का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण लाइट ऑलवेज क्या करता है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है, प्रोपेगेट करता है। इसी फिनोमेना को, ऐसी लाइट की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मीन्स व्हाट? रेक्टिलिनियर का मतलब होता है, रेक्टिलिनियर का मीनिंग होता है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन भी आप देखे होंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पूरा समझ में आया हो।
और इधर अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।